collaborated with this visit, because this visit was earlier, decided, planned. So it is a good thing, because environment is otherwise environment अगर हम सेव नहीं करेंगे आज की डेट में, our ecology और environment आज की डेट में burning issue है, because पूरी दुनिया इस समय on the brink of extinction है. It is high time we must think and act for the survival of this spaceship Earth. So I'll request Vidyarthi sir to take one tree and enlighten us also about the users and identification of that tree. Pleasant good morning to all. Honorable Vice Chancellor, Cluster University, Principal MM College, Controller of Examinations, Yes. Ran Vijay Singh ji, Registrar Madam, and other faculty members and students. I am really feeling honored to be in this college in presence of Honorable Vice Chancellor. भारतीय संस्कृति को बोला गया अरण्य संस्कृति, जो वनों से शुरू हुई और वनों के साथ हमारा वृक्ष आयुर्वेद भी लिखा गया. एक पेड़ की भी चिकित्सा करनी पड़ती है, उसका भी इलाज करना पड़ता है, उसको भी बीमारी लग सकती है. तो किस तरह का हमारा हजारों साल पहले पेड़ों के प्रति, पर्यावरण के प्रति एक संस्कृति को हमने जन्म दिया. उसके साथ आज पहला ये हफ्ता है दिसंबर का, हर साल नागालैंड में एक जगह है किसामा, कोहिमा के पास ही है, गांव है, हेरिटेज विलेज. वहां पे क्या चल रहा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल. 10 दिन का वो फेस्टिवल होता है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी मीजो, नागा, आगे जो बैम्बू डांस है, ऑल दोज कल्चरल परफॉर्मेंसेस आर बीइंग शोकेस्ड बिफोर द वर्ल्ड. प्राइम मिनिस्टर साहब भी 2015 में ही हैड गॉन टू दैट हॉर्नबिल फेस्टिवल. हॉर्नबिल इज आल्सो फाउंड इन जम्मू and Dogri name is Doa. Once I got call from science college, GGM science college, that there is one hornbill entangled in the wires. So please send your rescue team. At that time I was in wildlife department, so that was rescued. In Hindi, the bird is called Dhanesh. In English, why it is called hornbill? बिल होती चोंच, जिसके ऊपर सींग जैसा हो. If you look the beak of this bill bird, you will find bill and then something above it. Technically that is called casque. And because of that look, which looks like horn, सींग की तरह दिखती है, इसलिए उसका नाम अंग्रेजों ने डाल दिया हॉर्नबिल. बट देयर इज अ हॉर्नबिल हाउस. कोई स्टूडेंट बता सकता है हॉर्नबिल हाउस इंडिया में कहाँ है? एनी स्टूडेंट रेज योर हैंड हु वांट्स टू टेल मी. Where is Hornbill House? Any idea about that? That's a very important center for the wildlife and birds. That is Bombay Natural History Society, where it is located in Mumbai. So different times you have the different directors. Presently I think he is a Mr. Apte, Dr. Apte, perhaps. He is a marine scientist. But previously there was Asad Rahmani, who has done a lot of work on the birds of Jammu and Kashmir. And I think this week or next week he is coming to Jammu and he will be releasing that compendium, Threatened Birds of Northwestern Himalayas. What is the name? You must know our personalities who have really contributed for the cause of environment, knowledge. So then we are familiar, we should be familiar with Salim Ali, Dr. Salim Ali. बर्थडे, जन्मदिन कब होता है उनका? कोई बच्चा बताएगा? 12 नवंबर को होता है. एंड ही इज कॉल्ड अ बर्ड मैन ऑफ इंडिया. ही इज नॉट फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी. पेड़ों के ऊपर जिसको माना जाता है पितामह, हालांकि वहां पे सिविल सर्विस के थे और आईएसओ होने से यू गेट एक्स्ट्रा 10 मार्क्स. ये ऐसा हो जाता है. इफ आई कंट्रीब्यूट, बट इफ आई एम नॉट आईएएस एंड इफ आई एम आईएएस, इट मेक्स अ डिफरेंस. So since he was A.O. Hume, Alan Octavio Hume, who is also known for the founding the Indian National Congress in 1885, but he is also reputed as the father of Indian ornithology. पेड़ों की बात करते करते मैंने क्यों बोला धनेश? जो जम्मू में होता है वो है
इंडियन ग्रे हॉर्न बिल। ग्रे का मतलब क्या है? उसका कलर एशी कलर्ड होता है, एशी ग्रे। इट्स अ वेरी कॉमन हॉर्न बिल of our Jammu, and what it eats, it love to eat अंजीर, figs, जो हम रमजान के दिनों में जब रोजा रखते हैं तब भी हम उसको खाते हैं, और अदरवाइज लोहड़ी हमारी आने वाली है मकर संक्रांति के तब भी, माने ये बड़ा एनर्जी बूस्टर है। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्रूट विच आवर अर्ली मैन स्टार्टेड ईटिंग इन द फॉरेस्ट। और जितने भी अंजीर हैं उनकी बहुत डाइवर्सिटी है। I was amazed, sir, when I got the call from Principal Chief Conservator of Forest. He was luckily, fortunately, my batchmate from Uttarakhand. So he said, you are conducting these tree talks, पेड़ परिचर्चा, पेड़ों की आप बात करते हैं, तो हम आपको शो करना चाहते हैं एक अंजीरों का बाग। And this was, I think, last year when there was G20 summit going on in the month of September. So then, where it is located? It is located Haldwani, near Haldwani, Lal Kuan. So I was confusing. There is Dhaula Kuan in Delhi. So luckily I was in Delhi. मैं is it in Dhaula Kuan? No, it is Lal Kuan. So there is we can have the pride. One particular garden focused only for the preservation and conservation of अंजीर, और भारत में 115 किस्म की अंजीरें हैं, मुझे पता नहीं था। जिसका सब्जेक्ट बॉटनी है, दीवानगी है बॉटनी की, रिटायरमेंट के बाद भी ये ट्री टॉक्स में कर रहा हूँ। 14 साल हो गए इस पेड़ परिचर्चा को करते हुए। आई हैड फर्स्ट ट्री टॉक इन दिस MM कॉलेज वे बैक इन जनवरी 2011। दैट वाज द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। वो वनों का साल था। और फिर 2011 से लेकर 2020 तक जैव विविधता को समर्पित दशक, 10 साल उसको ही समर्पित हुए कि हम जन जन तक जैव विविधता की बात को पहुंचाएं। प्लीज बट आई थिंक यू कैन स्पीक फ्यू वर्ड्स, बट एवर आई हैव स्पोकन नाउ। प्लीज सर, वेलकम। Only one thing I like to tell you, see such talks, I really appreciate, sir, for all the, tree talks you have been conducting, because sir has very clearly told me about your profile. Absolutely stunning and is captivating, and that is what every EVA student has to do. आपको मालूम है लंदन बहुत बड़ा सिटी है, बट लंदन सिटी में वो फॉरेस्ट है, पूरा फॉरेस्ट है। इट इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट सिटी। हमारा जो आपने जो बताया कि ये जो फॉरेस्ट का है हम शुरू किया है, लेकिन किसी भी सिटी में फॉरेस्ट नहीं है। ट्रू। तो इसलिए आप लोगों का है ये जो EVS पढ़ने वालों स्टूडेंट, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड यू हैव टू एंश्योर दैट cities turn to forest, which will absorb lot of dust. What is the AQI of Jammu? What is the AQI? आपको मालूम है क्या है AQI? एयर क्वालिटी इंडेक्स। कितना है अभी? कवर कितना है अभी इधर? वीडियो एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अराउंड 200 to 300। अरे इतना बुरा है, अलार्मिंग है। इट इज पुअर, एज पर रिकॉर्ड्स इट इज कॉल्ड पुअर। मैं पिछले महीने एक जगह गए थे, उसका नाम था मडिकेरे जो कर्नाटक में है। वो मडिकेरे का AQI उस दिन मैंने देखा, इट इज 5 लोगों से। दैट इज व्हाट इज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपको you have the responsibility to see that you create more trees, more plants, so that this city is able to absorb all that and bring down the AQI. Madikere has complete forest cover. That is why the AQI is 5. So I request all of you, please ensure your responsibility to take this particular thing, and I'm sure you'll be able to do very well. Jai Hind. Thank you. I was checking to Yes. Aryal Patra.
named after Janaki Mal, the first PhD in botany, who has really made our sugar cane so sweeter. But she has also worked in Indian Institute of Integrative Medicine in Jammu, Correct. RRL, as officer on special duty. Lot of affinity and love for her also. But we also have name of a one plant named in honor of her, Janaki Mal. Janaki Mal Herbarium, it is in Jammu. You must visit sometime. And which is that plant? Janaki Aryal Patra. Aryal means what? In Malayalam, it is not people. Anjeer, Patra, leaf. Aryal Patra means people, जिसको हम बड़ भी कहते हैं. So will be. I am really honored, sir. In your presence, I am speaking. Thank you, sir. Please. Thank you all. आप करो. So बच्चों ट्री टॉक तो चलेगी अभी. ये तो उप कुलपति के सम्मुख है ना, उनको सम्मान देते हुए उन्होंने चाहा कि थोड़ी सी बात हो जाए उनके सामने भी. तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू बिकम द यू शेप. आपका ग्रुप जो है ना, आप थोड़े पीछे हो जाए. यू कम दिस साइड. सो डीप यू. यू मीन्स यू गो बिहाइंड. ओके, प्लीज डोंट फॉरवर्ड while you go. Yes, I am happy. Now you have understood. You can join here up to this. Yes, that's enough. Let it be a circle. No problem. So, madam, you can introduce. It was without that introduction from your side. You just start and then I will again continue. Okay, students. एक initiative है सर का green walk और tree talk. उसको हम शुरू करने जा रहे हैं. आज आप सर के साथ डिटेल में इंटरेक्ट करेंगे. आज बायोडाइवर्सिटी का ही आपको उसके बारे में, ट्री डाइवर्सिटी के बारे में सर आपको बताएंगे. ठीक है. तो ओपी शर्मा सर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी सर के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि सर एक नेचुरलिस्ट हैं. इको कंजर्वेशन के फील्ड में सर का बहुत काम है और सर को बहुत नॉलेज है ट्री डाइवर्सिटी के बारे में, पेड़ों के बारे में. जैसे कि सर ने बताया कि बर्ड्स के बारे में भी इनको नॉलेज है. ऑल ओवर बायोडाइवर्सिटी के बारे में इनके पास इमेंस नॉलेज है. तो आप लोगों को क्या करना है, आज आप सर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और सर से जो आपकी क्यूरीज है वो सारी आप उनसे पूछेंगे. ठीक है. मैं आपको बोर नहीं करना चाहूंगा. हम पेड़ के पास जाएंगे, पेड़ से मुलाकात करेंगे एक अलग अंदाज में. आइए. Okay. Now you become in that group. I will give you a question. Name this tree. Which is this tree? क्या ट्री है ये? हाँ? वही तो पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आपका कॉलेज है. तो सुनो आप 1999 में जेम्स वांडरसी एंड एलिजाबेथ दे रोट ए बुक. उसका क्या नाम था? प्रिवेंटिंग. जैसे हम प्रिवेंट करते हैं ना डिजीजेज और समथिंग, उसके लिए क्या करना चाहिए, सम प्रिकॉशन, डूज एंड डाउन्स, है ना. प्रिवेंटिंग प्लांट ब्लाइंडनेस. ये बुक कब लिखी गई? आज से 25 साल पहले. ट्री हमारे सामने है. पहले तो हम देखना नहीं चाहेंगे, चूंकि नाउ आई एम कंडक्टिंग ट्री टॉक, तो देन यू आर फोकसिंग. अदरवाइज पेड़ है, होगा एक ही जैसे पेड़ हैं, क्या करना. सो वी इग्नोर. We don't have that much attraction or fascination for trees and plants as we have for animals. इधर पीफॉल, पीकॉक उड़ता हुआ आएगा, देखना किस तरह से आपका मन रोमांचित हो जाएगा. जहाँ लायन, टाइगर देख के आपको अच्छा लगेगा. फिश देखेंगे आप, या फिर आप तितलियां देखेंगे, खासकर बच्चे. बट व्हेन दे आर इन ब्लूम्स देन दे आल्सो आर डेकोरेटिव. नॉट ऑल बट कुछ. जैसे अभी बांग्लादेश की बड़ी बात हो रही है. Can any one of you tell me why Dhaka has been named Dhaka? Anybody? ढाका का नाम ढाका क्यों? Anybody? इसका मतलब आपका अभी ब्लाइंडनेस, जैसे मेरी भी है ब्लाइंडनेस, वी हैव लेवल्स. आपकी ज्यादा है, मेरी थोड़ी कम है, पर जीरो मेरी भी नहीं है.
ढाका का नाम एक ट्री से है। वो ट्री कौन सा है? जिसको ढाक कहते हैं। हिंदी वाले, अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो हमने पढ़ा होगा, ढाक के 3 पात। जैसे मैं अभी ट्री टॉक कर रहा हूं और कल मैं फिर आऊं या कोई आपको पूछे ये कौन सा पेड़ है, अभी तो पूरी बात हुई नहीं, पर बात होने के बाद अगर आप कहते हैं सर पता नहीं, तो मीन्स कोई फायदा नहीं ट्री टॉक करने का। यू डोंट आइडेंटिफाई, यू कांट आइडेंटिफाई द ट्रीज विच आर इन योर कैंपस इवन आफ्टर ट्री टॉक्स, ज्वाइनिंग ट्री टॉक्स और लिसनिंग टू ट्री टॉक्स। तो वो क्या होता है? एपैथी है, इग्नोरेंस है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ढाक के 3 पात का मतलब होता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, यू हैव नॉट इम्प्रूव्ड, आप सेम के सेम ही हो। तो ये हिंदी का मुहावरा है। अगर बच्चे को बड़ा पढ़ाया जाए और वो फिर वैसे का वैसा ही रहे, नैनी सब्जेक्ट और वटेवर, तो कई बार कहा जाता है वही ढाक के 3 पात। बड़ा कोशिश की, उसने कोचिंग ली, IAS हुआ नहीं, वही ढाक के 3 पात, क्योंकि उसने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा, है ना। सो ढाक इज ए पेड़ ऑफ इंडिया, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। कई बार आया था कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, which tree is flame of the forest? Not only this, but even once upon a time it was a question in कौन बनेगा करोड़पति, and the lady who was sitting on that hot chair could not reply properly. ABCD होता है, और उसको नहीं आने से वो 50 लाख ही जीत पाई, नहीं तो करोड़ जीत जाती। तो हो सकता है समटाइम्स ट्री टॉक में से भी आपको क्वेश्चन जो है, इफ यू रीच दैट हॉट सीट, उसको हम पला बोलते हैं डोगरी में या पंजाबी में, केसू भी बोलते हैं, हिंदी में टेसू बोला जाता है। और कृष्णा राधा की होली ये वाले रंग नहीं थे, टेसू के फूलों को ही सुखा के इसके रंग को गुलाल कहते थे। तो गुलाल इज नॉट ओनली ट्रेडिशनली वेरी एंशिएंट कलर, बट इट गिव्स ए कंप्लेक्शन टू योर स्किन। जो फेस पैक्स लगाते हैं, इफ यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन हैविंग योर गुड कंप्लेक्शन, you go for aloe vera, you go for this and that, then this is also one plant tree। क्या? पलाश, ढाक, अलग अलग नाम है, केसू, टेसू, डोगरी में टटुए कहते हैं एक फूल को। और वाई टटुए, इट हैज द वर्ड हैज कम फ्रॉम तोते, बिकॉज सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत। संस्कृत में उसका, इस पेड़ का नाम है किंशुक। शुक किसको कहते हैं? तोते को कहते हैं। किमशुक, उसका मतलब उसकी चोंच, जिस तरह तोते की चोंच मुड़ी हुई होती है और लाल होती है, देखा है तोता सभी ने मिट्ठू, सो इट गॉट इट्स नेम किंशुक इन संस्कृत, एंड दैट हैज आल्सो बीन ट्रांसलेटेड इन डोगरी एज टटुए। तोतुए है बेसिकली, बट बिगड़ते बिगड़ते, जैसे नाम जम्मू का जम्बू था। पुराने बुजुर्ग कहीं मिले आपको, अगर आप गए कानपुर, जैसे मैं गया बहुत पहले, तो ओल्ड पर्सन कहते हैं आप जम्बू से आए हैं। तो एट दैट टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था। जम्मू जो है वो जम्बू का नाम था। थोड़ा सा पीछे चलिए, ये आगे आओ आप। मैंने दिस इज इनडिसिप्लिन, कम हियर। पीछे वाले, यू आर जस्ट हैप्पी इन गॉसिपिंग, आई विल नॉट बी अवेलेबल हियर एवरी डे। आई एम ऑलरेडी 64 years old, but you, I think I have more energy and more interest in listening to others. So this is your first lesson. You may learn my inputs or not, but discipline is one which you must nurture. It will help you. Rising early in the morning, those who get up at 4 o'clock in the morning, they finish lot of their work, creative work, मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, whatever, दूध दही लाना है, गाय का उसको चारा इकट्ठा करना, they do. But who are waiting till 10 o'clock, so you lose that time. Time is very precious. I started these tree talks 19 December 2010, और 19 दिसंबर अभी आने वाला है, इसकी सालगिरह होगी, और बड़े भव्य तरीके से हर साल होती है। बट 14 साल अलग ही एक 14 साल का वनवास जैसे राम का भी होता है। तो 14 years हैज ए, 16 साल भी एक अच्छा नंबर है, पर वो बाद में आएगा, अभी तो 14 ही है। तो 14 साल ये पेड़ों की बात करते करते, इसका नाम है मौलश्री। इस पेड़ का नाम क्या है? मौलश्री, लेकिन डोगरी में हम मौलश्री भी कह देते हैं। बट इसका संस्कृत का नाम, सबसे पुराना नाम है वाकुला। वेरी रिलीजियस ट्री इन साउथ इंडिया। दिस इज प्लांटेड इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और नियर बाई वी हैव कांगड़ा में ज्वाला जी का मंदिर, वहां यू कैन सी द ओल्ड ट्री। यू मे गो एंड पे होमेज, आराधना पूजा करके आते हो और पूछो भाई कौन सा पेड़ था जिसको आपने धागा बांधा, या हो सकता है आपने कुछ किया हो। Nobody knows. Even after, if you visit the Golden Temple, there is a Dukhvanjani berry.
If you go to some mosque in Kashmir, you will find चिनार. चिनार उसका कश्मीरी नेम बोनी है. Buni word has come from Bhavani. Bhavani is a kind of goddess. Goddess is nothing but energy. अब पुराने लोग थे तब कहाँ ये कॉन्सेप्ट थे थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं थे ना. तो देन दे थॉट ऑफ समथिंग, उस एनर्जी का नाम दे दिया, दुर्गा दे दिया या वटएवर. इस तरह से उनकी इंटरप्रिटेशन थी. उनको बुरा नहीं मानते वो कैसे थे, उनका क्या दिमाग था. दुर्गा हो सकती है 4 और 8 बाजुओं वाली. भाई दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन टू टेल यू मोर एनर्जी. अब हमारे आज के कंसेप्ट है अलग है ना. वी आर मोर मैच्योर, मोर साइंटिफिक, मोर रैशनल. लेकिन फोर फादर्स हैव कंट्रीब्यूटेड सच वोकेबुलरी. ये मोलशरी शब्द हजारों साल पुराना है. जैसे मैं बात कर रहा था, ये संस्कृत में पेड़ों के नाम जो हैं, ये तो हमारे वृक्ष आयुर्वेद भी एक और मिसाल दूसरे देश की नहीं को मिलती कि यहाँ पे पेड़ों पे हजारों साल पहले इतना काम हुआ हो. उसको ऐसे भी अमेरिका, जिसको आज एडवांस है बहुत, पर उसको क्या कहते हैं, न्यू वर्ल्ड. और ओल्ड वर्ल्ड कौन है? चाइना, ईरान, इराक, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान. तो माने हमारे पास जो नॉलेज है ना, उस नॉलेज को दोबारा से रीप्लो करने का एक सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक ग्लोबली एक इनेक्टमेंट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिसके चलते एक एक्ट पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट में भी. उसका नाम है इंडियन बायोडायवर्सिटी एक्ट. 2002 में बना था. और जो 10 साल इसके लिए रखे थे, उसका मतलब यही था कि बच्चे बच्चे तक ये जो हमारा नॉलेज है बुजुर्गों का दिया हुआ, ये पहुंच जाए, पता चल जाए उनको. ढाका नाम ढाका पेड़ से है, पलां वाला जम्मू में है इधर. और प्लासी की लड़ाई जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पहली लड़ाई जो लड़ी गई सराजुद्दौला और वो कौन था, नवाब ऑफ बंगाल के बीच में, वो अंग्रेजों को पांव जमाने का एक वो मौका मिल गया, क्योंकि वो नवाब ऑफ बंगाल ने हार दी वो लड़ाई, जिसको हम कहते हैं प्लासी की लड़ाई. प्लासी क्यों प्लासी? सुना कभी, समझा कभी? प्लासी इज द नेम ऑफ ए ट्री, क्योंकि ढाक का दूसरा नाम पलाश है, बट इन बांग्ला इट इज कॉल्ड पलासी. दे डोंट से श. पलाश. लॉट ऑफ न्यू नेम्स इन बांग्ला हैज बीन कॉइन्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पेड़ को कॉन्वोकेशन में, जैसे आपके यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशंस होती हैं जब आपको डिग्रीज वगैरह मिलती हैं, तो एक पर्टिकुलर ट्री के पत्तों को देना शुरू किया था शांति निकेतन में. एक तो गुलाल, वो भी होली भी जो है वो इस पेड़ से होती थी, ढाक के फूलों से. और दूसरा क्या होता था, सप्तपर्णी, सप्तपर्णा, 7 पत्तियां. इधर है कहीं पेड़, देखना पड़ेगा. एल्स्टोनिया कहाँ है? इधर होगा कहीं, है ना? अभी आज दिखाएंगे, उधर तक तो जाएंगे हम. वो बाकायदा मुकुट की तरह उसके पत्ते, जैसे हमारे पास मैंगो, अगर सप्तपर्णी हमारा एग्जैक्टली नहीं होता था, अब लगाया गया है जम्मू में, लेकिन आज से 50 साल पहले नहीं था, तो आम होता था, तो आम के पत्ते. तो बंगला के एंगल से और साउथ इंडिया के एंगल से उस सप्तपर्णी को, और नॉट ओनली दैट, स्कूलों में तब ये डिजिटल जमाना नहीं था, मेरे टाइम में भी नहीं था, तो हम वुडन ब्लैक बोर्ड्स पे काम करते थे पढ़ाने का, जो चाक के साथ. और जो वुड होती थी मोस्टली इस पेड़ की बनाए जाते थे ब्लैक बोर्ड्स. और ये अंग्रेज जब उन्होंने गुलाम बनाया, लेकिन ये कहानियां भी सुनते थे, तो वो जाते जाते ये शब्द भी दे गए उस पेड़ का नाम जो है, जिसको संस्कृत में हमने सप्तपर्णी कहा, क्योंकि उसमें एक जगह से 7 पत्ते निकलते हैं. तो वही 7 पत्तियां हो गया, वही डोगरी पंजाबी में 7 पत्रा हो गया. लेकिन अंग्रेजों ने क्या नाम दिया, इंडियन ब्लैक बोर्ड ट्री, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने पहले टाइम में काफी ज्यादा उसकी वुड को किसके लिए यूज किए, ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए. और फिर उन्हीं पे पढ़ पढ़ के बहुत लोग हो गए, सीवी रमन जैसे नोबेल प्राइज. हम नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? जनवरी. नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? हैं? कब, विच डेट? 28 ठीक बोल रहे हो ना, ज्यादा मत बोलो. 28 ही ठीक है. वो होता है नेशनल साइंस डे. क्यों मनाते हैं वो नेशनल साइंस डे, बताओ बच्चा कोई. व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड? जब हम कहते हैं गूगल इंटरनेट में सारा है नॉलेज, लेकिन हमारा
रुझान नहीं है, हमारा इंक्लिनेशन नहीं है, हमारी दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है, तो नॉलेज नहीं आएगा। जो उनका एक खास उनका एक्सपेरिमेंट था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो अपने आप में एक बड़ा साइंटिस्ट जिसका नाम था रमन इफेक्ट, वो उन्होंने इसी दिन खोजा था। 28 फरवरी ही लोगों को बताया कि ये देखा मैंने कि जो रेज रेडिएशंस होती हैं वो बाद में चेंज होती हैं कुछ मीडियम में से, इन बट काइंड ऑफ कंडीशंस, वो वैसी की वैसी नहीं रहती। तो बट एवर स्कैटरिंग ऑफ लाइट या रमन इफेक्ट, वो उसकी खोज, कई बार हम कंफ्यूज करते कि शायद उनके जन्मदिन होगा, नहीं जन्मदिन नहीं, बल्कि रमन इफेक्ट की खोज उन्होंने उस दिन की थी। इसलिए हम नेशनल साइंस डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब होता है? मैथमेटिक्स किस किस का सब्जेक्ट है? आपका होना चाहिए, किसी का भी नहीं है। रामानुजन कब होता है वो? वेरी गुड, मैथमेटिक्स है आपका सब्जेक्ट, लेकिन ये पता होना चाहिए यार। तो पेड़ों की जो गिनती है, कितने किस्म के पेड़ हैं, आज ही मैंने सुबह पढ़ा, पहले 60,000 कह रहे थे, आज डाटा सुबह सुबह ही पढ़ा 73,000, शायद कुछ और भी होगा 1-200 वर्ल्ड ओवर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज कितने हैं? 73,000। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 3,200 कुछ इस तरह से है, 3,200। और हमारे जम्मू में कितने हैं? अगर कश्मीर को भी जोड़े, जम्मू और कश्मीर में कितने पेड़ हैं? कुछ यहाँ के जंगली हैं, कुछ लगाए गए हैं, तो उनका नंबर जो है 450 के आसपास है। दैट्स अ रफ गेस एस्टिमेट, एग्जैक्टली अभी काउंट नहीं हुआ उस तरह से। और जम्मू सिटी में अगर आप देखेंगे कम से कम आपको 200 किस्म के पेड़, क्योंकि बहुत से एग्जॉटिक्स भी है, बहुत से हमने गार्डन ऑर्नामेंटल भी लगाए। और 200 में से अगर हम आपका आकलन करें कि एक बच्चे को जम्मू के कितने पेड़ों के नाम आते हैं, है ना, तो हो सकता है किसी को 15 आए, बहुत अच्छा बच्चा परफॉर्म करेगा तो 60 नाम बता सकता है, 100 तक भी हो सकता है। बट 200 या 250 जितने हैं यहाँ पे पेड़, सबके नाम आते हों? नहीं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? हमें रुचि नहीं है, हमें दिलचस्पी नहीं है। और इसी दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए, इसकी तरफ सबका ध्यान केंद्रित करने के लिए बुक लिखी गई 1999 में, जो वांडर सी और शुसलर, एलिजाबेथ शुसलर, ये आप देख सकते हैं उसमें। और उन्होंने क्या कहा कि ये एक खतरे की घंटी है। अगर हमारी युवा पीढ़ी, हम तो मर जाएंगे ना, हम थोड़ी हमेशा रहेंगे इधर, आहिस्ता आहिस्ता वी हैव टू वैकेट अवर स्पेस एंड यू विल ऑक्यूपाई। और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा ये आम है, मौलसरी है, आपको पता नहीं। गूगल में सब कुछ है, वो समेट हम हमारे जैसे कोई सिर फिरे लोग दीवाने डाल रहे हैं उसमें नॉलेज, पर उस नॉलेज को क्या यूज करते हो आप? आपके मन में है कि मुझे नॉलेज आए, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कश्मीर में ट्री टॉक करते करते एक दिन आएगा 27 मई 2011, तो मुझे किसी भी जगह ट्री टॉक करनी हो तो थोड़ा दिलचस्प बनाना पड़ता है इसको। बोलता है रिपीट हो गया, अब हो गई एक ट्री टॉक, दूसरे दिन क्या करना है, क्यों करनी है आज? तो डेट वाज 27 मई 2011। तो आई आस्क्ड द फ्लोरिकल्चर ऑफिसर, शालीमार गार्डन, मैंने कहा ट्री टॉक होगी। कहते डॉक्टर साहब आज क्या दिन है? मैंने आज नूर जहां का निकाह हुआ जहांगीर से, तो लेट अस सेलिब्रेट दैट मोमेंट। तो वी हैड दैट ट्री टॉक। आपके अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में किसी का बर्थडे है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, व्हाटएवर, सो यू कैन ऑलवेज मार्क द ओकेजन बाय गिफ्टिंग ए प्लांट रादर देन गिफ्टिंग सम मार्केट की कोई चीज। आपकी सोच में ही नहीं, बट फूड्स, खाना खाते हैं आप, अगर आपके सामने बनाना है, सेब है, यू हैव ऑप्शंस, तो उसको आप नंबर 1 प्रायोरिटी दीजिए रादर देन नूडल्स खाने हैं या व्हाटएवर जिसमें न्यूट्रिशनली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। चॉइस इज योर्स। क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स क्वालिटी ऑफ योर हेल्थ। वो मेरा हेल्थ नहीं, आपका अपना। आप अपने हेल्थ को कितना अच्छे ढंग से रखना चाहते हो, उसके लिए ये ट्री टॉक, पर्यावरण का जो है दोहन ना हो, प्रदूषण, जैसे उन्होंने बोला दिल्ली में क्या हालत हुई,
समझ तब आती है जब उस दौर से हम गुजरते हैं। अगर हम सारे सेंसिटाइज हो जाएं और एक तहिया कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें पर्यावरण के लिए जागरूक होना है और थोड़े बहुत जितना भी हो सकता है अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंज लानी है, तो डेफिनेटली वी कैन ब्रिंग द चेंज, है ना। थैंक यू।